Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, we were doing our second chapter of economics class 10, that is the sectors of Indian economy. In our previous class, we had studied about the different sectors on the basis of economic activities, that is primary, secondary and tertiary, that we had learned about how they shared in the growth of national economy, how they contribute in the growth of national economy. And then we had also learned the difference in their share or in their ratio about the contribution in terms of income and in terms of employment. In developed countries, the tertiary sector is contributing equally in income as well as in employment. But in the developing countries like India, the maximum income is coming from the tertiary sector, but more people are still employed in the primary sector. तो यहाँ तक जो है हमने अपनी पिछली क्लास में कर लिया था. I hope the concept is clear till there. Now we'll continue the same concept. Where are most of the people employed and why? So where they are employed, we all know that in terms of India, still the maximum people are employed in प्राइमरी सेक्टर. वाई? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. हो सकता है कि दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर नॉट क्वालिफाइड, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ वर्किंग इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, और नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, या फिर सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इज नॉट कैपेबल टू जनरेट द जॉब्स और वैकेंसीज in equal proportionate to the population or to the number of people. Okay, and that's why now those who are unemployed, they involve themselves in the agricultural activities or the primary sector activities. Now why this situation is happening, why it is all happening? When people are more employed, अब ये हो कैसे रहा है? Suppose one person or the two persons are employed in agricultural sector or farming, we can say. If the person will not get the job, what the family will do? They will say, okay beta, if you are not getting a job, come and help me in agriculture or in farming. खेतों में मेरी हेल्प करो. बेटा क्या करेगा? उन्हीं फील्ड्स में where the father was earning the money, he also start joining him. लेकिन क्या इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी? क्या इससे एक्स्ट्रा इनकम होगी? नो, there will be no extra income, there will be no extra production, because the land is fixed, only the work is shared. Earlier the complete agricultural work or that cropping work was done by the father, and now he has a helping hand as his son also started joining him. So work is shared, but there is no increase in the production or the income. So सच सिचुएशन, अब इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में ये जो एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा जनरेट हो रही है, नॉट ऑल द पीपल आर एक्चुअली एम्प्लॉयड. सो दिस वॉज अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. It is a situation where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. People are working, but they are not working in proportion to their ability, in proportion to their potential. जितना काम वो कर सकते हैं उतना काम वो नहीं कर पा रहे. जितना पैसा वो कमा सकते हैं उतना पैसा वो नहीं कमा पा रहे, अकॉर्डिंग टू देयर फिज़िकल, मेंटल एंड क्वालिफिकेशन एबिलिटी. जितनी उन्होंने स्टडी की है, जो उनकी एज है, जो उनकी मेंटल एबिलिटी है, वो उससे कम जो है काम कर रहे हैं. इफ़ फ्यू पीपल मूव आउट, इट विल नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन. तो जहाँ भी वो लोग काम कर रहे हैं, अगर वहाँ से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए, सपोज 5 persons आर इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी, वहाँ से इफ़ वी विल रिमूव 2 people, बट स्टिल देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन. मतलब जो काम जो चल रहा था वो एज इट इज़ चल रहा है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. ठीक है, तो इसका मतलब कि वो उन 2 लोगों का वहाँ होना और ना होना, इट इज़ सेम.
वो लोग वहाँ थे तब भी प्रोडक्शन उतनी हो रही थी, अब उन लोगों को हमने वहाँ से निकाल दिया और अब भी प्रोडक्शन उतनी हो रही है। तो इट मीन्स दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड, and it is hidden in contrast to the open unemployment where a person is clearly or visibly without job। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें लगता है कि वो काम कर रहा है, बट रियलिटी में वहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड देयर, ही और शी इज़ नॉट रिक्वायर्ड देयर, लेकिन क्योंकि वो घर पर फ्री है तो वो वहाँ पर जा रहा है। तो he is only sharing the work there, he is not doing any extra productive work to generate his income। तो दिस इज, अब देखो हो क्या रहा है, वो काम कर रहे हैं पर वो काम नहीं कर रहे रियलिटी में, लेकिन हमें लग रहा है कि काम कर रहे हैं। तो सच सिचुएशन इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों बोला? अपनी पोटेंशियल की लिमिट से कम काम कर रहे हैं, अपनी पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं। अंडर, जितना पैसा कमा सकते हैं उससे कम पैसा कमा रहे हैं, इसलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट। एंड एक्चुअल में जो है उनकी जो है प्रोडक्शन नहीं है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो दैट इज़ वाई। पर हमें क्या लग रहा है कि दे आर डूइंग वर्क, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? छिपी हुई, मतलब ऐसा लगना कि लोग काम कर रहे हैं बट रियलिटी में उनकी तरफ से कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इज नॉट डन। This underemployment also happens in the other sectors. For example, there are thousands of casual works in service sector in the urban areas as painters, plumbers, repair person, etc. तो ये जो सिचुएशन है डिस्गाइज्ड एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की, वैसे तो ये बाकी सेक्टर्स में भी मिलती है, बट दिस इज़ मैक्सिमम इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में माइनिंग में जा रहे हैं या फिर फिशिंग का काम हो रहा है, 2 लोगों की ज़रूरत है, 4 लेबर जा रही है वहाँ पे, ठीक है। जो लोग फिशिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, तो जहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 4 वर्कर्स जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर जस्ट शेयरिंग देयर वर्क, बट the extra 2 people are not doing any extra productive work. The work that the 4 people are doing, that can be done by the 2 people also. Okay, so it is seen in other sectors, but it is maximum in the primary sector only. Now how this situation can be controlled? What can be done by the government in this case? Of course हो क्या सकता है कि बाकी सेक्टर्स में या प्राइमरी सेक्टर में ही, इन ऑल द 3 सेक्टर्स, अगर कुछ ऐसे स्टेप उठाए जाएं जिससे कि इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है हो सके, जॉब्स क्रिएट हो सके, तो फिर जो लोग अभी एज अ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं वो वहाँ पर क्या करेंगे? अपना एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव वर्क करेंगे एंड दे विल अर्न मनी। तो नाउ विल डिस्कस द डिफरेंट स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट कैन टेक। नंबर 1 इज, if more dams are built and canal water is provided to all the small farmers, a lot of employment can be generated in agricultural sector। देखो डैम्स बनेंगे तो बेटा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम मिलेगा, ठीक है। उनको काम मिलने के साथ साथ जो वाटर रिजर्वॉयर्स एंड जो कैनाल्स बनेंगी डैम कंस्ट्रक्शन के साथ, वहाँ से द वाटर कैन बी ईजिली प्रोवाइडेड टू फार्मर्स फॉर द इरीगेशन। अब इरीगेशन फैसिलिटी इम्प्रूव होगी, जहाँ पर अभी पानी नहीं है वहाँ पर अगर इरिगेशन फैसिलिटी इम्प्रूव होगी तो ऑफ कोर्स जो फार्मर्स हैं उनका काम भी बढ़ जाएगा मीन्स टू से इन अ पॉजिटिव वे, देयर इनकम दे विल बी एबल टू डू मोर प्रोडक्शन एंड गेट मोर इनकम। सेकेंड, प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट होता है लोन फैसिलिटीज़ एंड क्रॉप इंश्योरेंस कैन रिजल्ट इन मोर एम्प्लॉयमेंट। अब लोगों को अगर ईजी लोन फैसिलिटी अवेलेबल हो बैंक्स में, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं स्पेशली फार्मर्स के लिए या स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, लेकिन लोन के टाइम पे होता क्या है, ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि पीपल डोंट गो देयर, दे गो टू द मनी लेंडर, और मनी लेंडर का जो हमारा इनकम सोर्सेज होते हैं या उनका जो इंटरेस्ट रेट हम बोले होता है वो बहुत हाई होते हैं। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट बैंक्स में, कोऑपरेटिव बैंक्स में
अगर वो इजी लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दे तो क्या होगा, लोगों को अगर इजी लोन कम इंटरेस्ट रेट पर कम ब्याज पर मिलेगा तो इससे इनकम जनरेशन ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि अब लोगों को लोन आसानी से मिल रहा है और उनके माइंड में जो आइडियाज़ हैं या तो जॉब करने के या बिजनेस करने के, तो वो क्या करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड दे कैन डू देयर ओन बिजनेस। ऐसी इंश्योरेंस फैसिलिटी अगर होती है, अब किसान के साथ क्या होता है, बारिश ज़्यादा हो गई तो भी फसल ख़राब, बारिश नहीं हुई तो भी फसल ख़राब। तो अगर क्रॉप इंश्योरेंस होगी तो उसके मन में डर नहीं होगा कि अगर मेरी फसल ख़राब होती है तो क्या होगा, बिकॉज ही विल गेट द कंपनसेशन फॉर हिज डिस्ट्रॉयड क्रॉप। Third, more money should be spent in transport and storage because then more people can be employed. ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बेटर होनी चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा सामान क्या करना पड़ेगा, सप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब जिस एरिया में रोड ही अच्छे से नहीं बनी हुई तो किसान वहाँ पर क्या करेगा, किसान वहाँ पर प्रोडक्शन करने में भी बहुत बार सोचेगा क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे रोड फैसिलिटी नहीं है। रोड फैसिलिटी के कारण वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, उसको अपना सामान जो है मेन मार्केट तक पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, देन नेक्स्ट इज स्टोरेज। अब सपोज़ इतनी सब फैसिलिटीज़ के बाद प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब प्रोडक्शन बढ़ गई तो सारा सामान तो एक साथ नहीं बिकता, तो अगर फार्मर के साथ अगर उसको अपने प्रोडक्ट का अच्छा रेट नहीं मिल रहा अभी मार्केट में, अब उसको क्या करना है, उसको अपनी वो प्रोडक्शन स्टोर करके रखनी है ताकि मार्केट में जब भी रेट बढ़े तो उस समय वो उसको बेच दे। तो उसके लिए स्टोरेज हाउसेस होने चाहिए। अब गवर्नमेंट अगर स्टोरेज हाउसेस प्रोवाइड करवाएगी तो फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे और जो स्टोरेज हाउसेस में जो लोग काम करेंगे उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। नेक्स्ट, बाय सेटिंग अप एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन और नियर रूरल एरियाज़। अब अगर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री सेटअप करते हैं रूरल एरियाज़ के आसपास तो जो इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पे तो वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी, जॉब मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ उस रूरल एरिया में वो जिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए वो मिल लगी है उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, फार्मर्स को काम मिलेगा, ट्रांसपोर्टर्स को काम मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब शुगर मिल है, शुगर मिल जिस भी एरिया में लगेगी वहाँ के लोग गन्ने की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनके एरिया में एक ऐसी फैक्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री लगी हुई है जहाँ पे कि शुगर प्रोड्यूस होती है। और शुगर किससे प्रोड्यूस होगी, शुगर केन से। ट्रांसपोर्टर्स को साथ में काम मिलेगा। सिमिलरली, टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल गाइडेंस टू एम्प्लॉयड यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब छोटे छोटे जो है टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो है जो यंग पीपल हैं उनको मिलनी चाहिए सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। समटाइम देयर आर सो मेनी बिजनेस इन द प्राइमरी सेक्टर ओनली बेटा वेयर अ पर्सन कैन अर्न वेरी गुड मनी विद अ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट डबल से भी ऊपर है, लेकिन उनको सिर्फ एक क्या है, दे लैक नॉलेज। तो अगर गवर्नमेंट उनको फ्री ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है तो दोज पीपल कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एंड गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस। फिशिंग के लिए गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग दैट हाउ दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस, हाउ दे कैन परस्यू इट, हाउ टू टेक केयर ऑफ द वट एवर इफ दे आर डूइंग फिशिंग। तो फिशिंग में उन्होंने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पोल्ट्री फार्म करेंगे तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। So all these are still done, it is done by the government और इसमें और भी जो है steps can be taken. In villages near forest, honey collection centers can be started. अब जो villages जो है जंगलों के आसपास है, जंगल में जो है मधुमक्खियाँ बड़ी मिलती हैं, तो वहाँ पर जो है हनी कलेक्शन सेंटर अगर बनाए जाए तो there will be extra job creation for the people. अब जो लोग एज अ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं जो लोग एज अ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं उनके लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी सामने होगी। मोर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विच विल प्रोवाइड जॉब टू मैनी क्वालिफाइड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल। देखो, आपने 9th क्लास में बेटा एक चैप्टर पढ़ा होगा पीपल एज अ रिसोर्स। उसमें हमने देखा था कि
क्वालिटी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, इफ़ दैट पर्सन इज़ एम्प्लॉयड इन एट प्रॉपर प्लेस अकॉर्डिंग टू हिज पोटेंशियल एंड क्वालिफिकेशन। तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल एंड हॉस्पिटल्स बनवाएगी तो ऑफकोर्स ज़्यादा स्कूल बनेंगे, मतलब एजुकेशन फैसिलिटी लोगों को मिल रही है, दे विल बी एजुकेटेड। हॉस्पिटल में बन रहे हैं तो ऑफकोर्स मेडिकल फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड। दूसरी चीज़, ये तो हो गया एक क्वालिटी पॉपुलेशन जनरेशन के लिए, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे तो कितने लोगों के लिए इनकम जनरेशन होगी? लेबर वर्कर को काम मिलेगा, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड हर तरह के। इंजीनियर हैं वो स्किल्ड हैं, लेबर वर्क है वो अनस्किल्ड है, ठीक है। फिर बिल्डिंग बनी है, सपोज स्कूल बना है तो बेंचेस आएंगे तो कहीं ना कहीं किसी कारपेंटर को काम मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा किसी कंपनी में, है ना। फिर इलेक्ट्रीशियन को काम मिलेगा, प्लम्बर को काम मिलेगा, कितने सारे लोगों के लिए जो है जॉब जनरेट होगी। और जब ये बन जाएंगी, अब हॉस्पिटल बना है तो डॉक्टर्स तो रखने हैं, कंपाउंडर्स रखने हैं, वर्कर्स रखने हैं, क्लीनिंग स्टाफ रखना है। सिमिलरली इज़ इन केस ऑफ स्कूल्स, टीचर्स की अपॉइंटमेंट होगी, नॉन टीचिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट होगी, क्लरिकल स्टाफ की अपॉइंटमेंट होगी। तो with the more and more constructions of school and hospitals, there will not only be a facility of education and health to a common man, but it will also create jobs for so many unemployed people. Okay, so in this way government can take many steps. Next is, अभी इसी चीज़ में गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया था इन 2005, दैट वाज नरेगा। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बोलते हैं नरेगा, एज यू कैन सी हियर, NREGA। नाउ व्हाट वाज नरेगा? द फुल फॉर्म इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखो, गारंटी मतलब सरकार कह रही है हम गारंटी दे रहे हैं कि हम काम दिलवाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंड फॉर दिस? अब इसमें जो है बेटा, शुरू में राइट टू वर्क वॉज गिवन टू पीपल, कि तुम लोगों को काम करने का अधिकार है। और इसमें किया क्या, एक कानून बनाया गया जिसमें क्या बोला गया, दोज हु विल बी रजिस्टर्ड, इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन होने लगी। इसी के अंडर जो है नरेगा सिस्टम स्टार्ट किया गया। नाउ आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, व्हेन द पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर नरेगा, what happened? Either they will be provided 100 days employment within 15 days after their registration in their local area. देखो, जैसे ही उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन के बाद उनको एक कार्ड या कुछ भी एक आइडेंटिटी प्रूफ उनको मिलता है। सो आफ्टर द 15 days ऑफ द within the 15 days of registration, that is the guarantee of the government to provide them job, and that's true in their local area. Okay, और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती है, सपोज they are not able to provide the job, then what will happen? It will give allowance to them. गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको अलाउंस दे, जैसे एम्प्लॉयमेंट फंड, अनएम्प्लॉयमेंट फंड जैसे मिलता है, ठीक है। तो ईदर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम द जॉब और इट विल प्रोवाइड देम द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, दैट इज एज इक्विवेलेंट टू द 100 days वर्क। तो एक 100 दिन की 365 दिन होते हैं, 365 days होते हैं ईयर में, तो 100 days, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बेटा। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट 100 days, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 100 days की वर्क की गारंटी जो है गवर्नमेंट उनको देती है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती, गवर्नमेंट फेल्स इन इट, तो इट प्रोवाइड्स दी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू देम ऑन मंथली बेसिस और एज पर द रूल ऑफ 100 days वेजेस, जितना भी उनका बनेगा उसके अकॉर्डिंग। इट वॉज इनिशियली स्टार्टेड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। और ये जो स्कीम थी नरेगा वाली, it was started initially in 200 district, and when it was successful, it was further expanded to the other districts and villages of
our nation. The work will of the type which will in future help to increase the production from land. और इसमें जो मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो किस फील्ड में थी? प्राइमरी सेक्टर में थी. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसा काम जिससे लैंड प्रोडक्शन मतलब वो चीज़ें जो हम लोग लैंड से प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इस तरह का काम जो है लोगों को दिलवाया जाने लगा. आज भी लोग जो है नरेगा के अंडर काम करते हैं एंड दे आर अर्निंग मनी. So students, here our today's topic is finished. We'll do, I have told you that we'll do different sectors of economy on different basis. So on the basis of economic activities we have done. So in our next class, we'll do the next type, that is organized and unorganized sectors of economy. Till then, all of you take care and have a good day.